नो माइक, नो ट्राइपॉड, 9-10 हजार का फोन। जुलाई में मैंने पहला इन्वेस्टमेंट किया था। आज भी फोन से ही बनाता हूँ मैं। के फोन से शुरू किया था, आज है 40 लाख सब्सक्राइबर। 5,000 रुपए का पूरा इक्विपमेंट है। तो दोस्तों, हमारे चैनल पर जब हम टॉकिंग टेक करते हैं तो अक्सर बहुत सारे डिफरेंट लोग आते हैं अलग अलग इंडस्ट्री से, बट एक चीज कॉमन होती है कि सब कहीं ना कहीं टेक्नोलॉजी से जुड़े हुए होते हैं। समटाइम्स वी गेट सीईओज फ्रॉम डिफरेंट कंपनीज एंड उनसे बहुत इंटरेस्टिंग कॉन्वर्सेशंस होती हैं। आज हमने सोचा कुछ डिफरेंट किया जाए, बिकॉज अ लॉट ऑफ यू कीप आस्किंग मी इन द कमेंट about the YouTube journey and how to set up a YouTube channel, how to make it successful. So we are one of India's most successful YouTubers with us, Pranjal Kamra. फाइनेंस के बारे में बात करते हैं, फाइनेंस के बारे में जानते हैं, बट आज से यूट्यूब जर्नी के बारे में जानेंगे कि कैसे मतलब इतने सक्सेसफुल एक यूट्यूब चैनल को अकेले एंड देन बाद में टीम के साथ जो भी है सेटअप किया। तो प्रांजल, वेलकम टू द शो। हाउ डज इट फील, हाउ आर यू डूइंग दीस डेज? कोविड के बाद क्या चल रहा है जिंदगी में? Thank you so much, Manas. Thank you for inviting me. And yeah, how do I feel? I'm really nervous about this. You know, जैसा आपने बोला, about with tech founders, and you know, I'm worried कि कहीं कुछ tech ना पूछ लें. How will I answer? I know absolutely nothing. So I'm really nervous about this. And you know, I mean, for us as a company, for me as a creator, most of finance creators, we started just before COVID, around the time COVID was coming into India. So I don't know, for us, life before COVID was completely different, and COVID changed it in a way that, we became professionals after COVID in a way. I became an entrepreneur during or after COVID in a way. So I don't know how different it would have been if COVID wasn't around. Of course, I know it for a fact that our growth would have been slower. People consumed more content. So growth would have been slower, but I don't know otherwise how different it would have been for us. तो चलो, ये एक बढ़िया बात हो गई। मतलब एक क्रिएटर, एक यूट्यूबर आके अगर हमारे चैनल पे नर्वस हो रहे हैं तो दैट्स अ कॉम्प्लीमेंट। आई टेक इट एज अ कॉम्प्लीमेंट। तो प्रांजल, मेरा जो पहला क्वेश्चन है ना आपसे, वो यही है, बिकॉज सी, none of us aspire to be a YouTuber. In fact, while growing up, this was never, we didn't even know that there's a profession like this, or there could ever be a profession like this, right? वो बचपन में स्कूल में जब पूछते थे तो बोलते थे आर्मी में जाना है या डॉक्टर बनना है, वो स्टेपल आंसर होते थे। So at what point did you think of becoming a YouTuber, or did you really start taking it very seriously? Oh, never. I mean, it was by accident, I would say. The thing was that one thing was sure, I was studying at NISM, completing my PG degree, and my roommate had worked in the sales side of the finance domain, and he would keep telling me ki if you take a job now, you'll have to do mis-selling, because he was from the sales side, so he thought all that happens in finance is sales, and that too mis-selling. So 1 year, he was my roommate. He brainwashed me into not taking a job at college. So I decided, okay, I won't take it. Then I have to do something. Had no money. So the only reason I started actually building a website that had content, blog articles, a course, and I used a drag and drop builder to build that website. But I was very, very apprehensive about it working out, simply because I had tried. So this is 2017 when I'm building that blog. So 2011, when there was this Anna Hazare Andolan against anti-corruption movement, I was a very active participant. I was around. Jantar Mantar gaye the? No, so I was at Raipur. So I was leading the units at Chhattisgarh. But yeah, and back then I had tried blogging to mobilize more people, and I had failed as a blogger. I tried it from 2011 to 13. So 2 years, my blog, there was absolutely no readers. So when I was in 2017, I was trying to do blogging again, this time by upgrading it, creating a website, but I still knew I don't know how to make this work. So I was looking for alternatives. Someone who does not have money had two options: create content, text content, or create video content. So as a desperate measure, the only reason I started YouTubing was, to ensure that my blog works this time. So I thought, if my YouTube clicks, people will come to my website. That was the only reason I started it. Until today, I don't consider myself a content creator. I don't consider myself a YouTuber. I consider myself a struggling fintech entrepreneur trying to build products, trying to solve the investec problems. So yeah, YouTube is one thing just happened. And now that I get so much love, people like to listen to what I say, is why, every week, every 10 days, when I have something to talk about, in my mind, I'm a blogger. In my mind, I'm not even a finance content. I think
Because you know what do bloggers do? They tell their routine, you know, daily life. Yes. So my routine is around finance, and I think every once a week I have enough content to tell people in 15 minutes what did I do or what did I thought about a particular thing. It just happens coincidentally that my blogs are around finance, but I think I'm a blogger. So what an interesting story, because मतलब कहाँ से बंदा शुरू करता है और क्या जर्नी होती है, कहाँ पहुंच जाते हैं. तो जो पहला वीडियो शूट किया था, आई एम श्योर यू वुड हैव सम मेमोरीज ऑफ इट, कि कहाँ शूट किया था, कैसे शूट किया था, कौन सा फोन, क्योंकि उस समय आई एम श्योर कैमरा पता नहीं होगा नहीं होगा, फोन से ही. आई थिंक एवरी यूट्यूबर हैज दिस वेरी सिंपल स्टोरी कि पहला वीडियो तो फोन से ही शूट होता है. तो कौन सा फोन था, कहाँ शूट किया था, मेमोरीज क्या है उसकी? There are two interesting stories actually. So ये decide हुआ था. I started building my website at NISM where I was studying because I knew यही तो करना है, job नहीं लेना है. And I decided कि ठीक है, blogging में I failed, so I'll create video. And there was this very good friend of mine, उसका ना job लग गया था. तो she was chill कि अब अगले 2 महीने मुझे कुछ नहीं करना है. And उसको finance बहुत आता था. तो I thought मैं ना इसके साथ शुरू करता हूँ. इसको finance बहुत आता है. तो मेरे in-depth videos ना ये बना देगी. तो हम दोनों साथ में बैठते थे एंड आई थॉट अभी ना ये यहाँ है, फिर तो वो कहीं और, मैं कहीं और, अभी सिर्फ रिकॉर्डिंग कर लेता हूँ, एडिटिंग बाद में करता रहूँ. तो 60 days वी रिकॉर्डेड 60 वीडियोस, बोथ ऑफ अस सिटिंग साइड बाय साइड. और ना मेरे पास वो Moto G3 था, 9-10 हजार का फोन, रूम में पंखा, माइक भी नहीं था, फ्रंट कैमरे से एकदम बेकार वीडियो क्वालिटी. और हमने 60 days बैठ के दिन भर रिसर्च करके शाम को 60 वीडियोस बना लिए और डाला एक भी नहीं. तो देयर वाज नो फीडबैक. तो जब भी मैंने 2-4 वीडियो एडिट किया और डाला, तो जो मेरे दोस्त और फैमिली मेंबर्स ही देख रहे थे ना, उन्होंने ही बोला ये क्या बना दिया, ना तो ऑडियो क्लियर है, ऊपर सूटकेस रखा हुआ है, तौलिया सूख रहा है और पंखा दिख रहा है और पता नहीं ये क्या है, कुछ सुनाई नहीं दे रहा, बहुत ही बेकार है, किसी को मजा नहीं आएगा. सो those 60 videos I decided ये तो नहीं जा सकते. All of them got wasted. June 2017 I started creating again. और अब मैं घर में था, वो मेरी फ्रेंड भी नहीं थी. And मेरा वीडियो का सीन ये होता था, दोपहर को 2 से 4 I can make the video because by then the only room in my house that got sunlight because the sun was on the windows side. So 2 to 4 ample sunlight, my weak camera phone could work. And before 2 there would be sabji wala, phal wala shouting and yelling, so I couldn't record. After 4 there will be children on the streets playing cricket and football, so I couldn't record. And I started in June. It's 45-46 degrees in Raipur. I would switch off the fan also so that there's no wind noise. And I would keep a towel handy. Every 45 seconds, 1 minute, I would wipe off my face, record the next 1 minute again. And there was this chair. On top of that, I would keep pillows, then some book, and then the phone, adjusting it with support from the books. So I remember watching this movie, Secret Superstar, came during the same time. And she recorded videos just the way I did, and I was crying in the theater saying, "ऐसा कुछ नहीं होता है. How can her first video go viral? I have created, 60 videos I created, couldn't put, and then again 60 videos I had created, so 120 videos. I'm not going viral. This doesn't happen." So I cried during the movie. So that was the lowest of the lowest phase. Yeah, I never thought I'll say this, but I can relate so much because before 2020 जब कोविड नहीं हुआ था, उससे पहले तक मैंने कभी ऐसे डिजिटली वीडियोस वगैरह नहीं करे थे. हम लोग का स्टूडियो वगैरह रहता था, स्टूडियो में वीडियोस हम शूट करते थे. बट जब कोविड हुआ एंड फर्स्ट टाइम वेंट वर्क फ्रॉम होम, एंड देन आई आल्सो स्टार्टेड रिकॉर्डिंग वीडियोस लाइक दिस. सो दैट पार्ट वेयर यू सेड कि हर 45 मिनट में पंखा बंद करके देन यू हैड टू वाइप. I have also done that. I never thought I'd say it, but I have also done that. अच्छा, एक जो सवाल लोगों के पास रहता है ना, अच्छा 9,000, बाय द वे एक चीज बताओ, 9,000 10,000 रुपए में फोन से शुरू किया था, सब्सक्राइबर कितने हैं अभी? ऑलमोस्ट 40 लाख होने वाले. बाप रे बाप, 9,000, मतलब अगर हम होते हम हेडलाइन चला देते हैं ना, 9,000 के फोन से शुरू किया था, आज है 40 लाख सब्सक्राइबर. हम शायद अभी अच्छा, आज भी फोन से ही बनाता हूँ मैं. अब फोन थोड़ा महंगा हो गया, लेकिन आज भी फोन से ही बनाता हूँ. अब आईफोन आ गया है. हाँ, अब आईफोन आ गया है, लेकिन बनता फोन से ही है. So because I'll take you further into this conversation because हमारे पास ज्यादातर लोग के जब and not just for YouTube, अगर किसी भी प्लेटफॉर्म के लिए कोई कंटेंट क्रिएट करना चाहता है, जो हमारे व्यूअर्स हैं, अक्सर वो ये पूछते हैं ना कि फोन तो चलो इज वन पार्ट, आई थिंक सबके पास रहता है, अच्छा बुरा जो भी है, बट व्हाट एल्स डू यू नीड, बिकॉज पीपल स्ट्रगल विद द माइक, ऑडियो क्वालिटी अच्छी नहीं आ रही वीडियो की, या फिर लाइटिंग, राइट? सो व्हेन यू स्टार्टेड व्हाट वाज द सॉर्ट ऑफ इक्विपमेंट दैट यू वर यूजिंग अपार्ट फ्रॉम योर फोन, और आज मतलब कितना अपग्रेड हो चुका है वो? तभी तो कुछ भी नहीं था. नो लाइट, जो सनलाइट आ रही है एक विंडो था, नो माइक, नो ट्राइपॉड,
और वो 9,000-9,500 वाला फोन, नथिंग एल्स एब्सोल्युटली। इनफैक्ट मेरा जो लैपटॉप था जिसमें मैं एडिट करता था वो मैंने 2016 में मेरा NISM जाने के पहले लिया था। मेरे को नया लैपटॉप चाहिए था, सेकंड हैंड मेरे को नहीं चाहिए था। चीपेस्ट नया लैपटॉप था एक Asus का 13,000 रुपए का नेटबुक, उसमें एटम प्रोसेसर था और 2 GB रैम था और 32 GB की हार्ड डिस्क। तो मैंने वेबसाइट भी उसमें बनाई, फिनोलॉजी जो पहली वेबसाइट है वो उसमें बनी 13,000 रुपए वाले लैपटॉप पे, और वीडियोस भी उसी पे एडिट हुए। वो कितना ही बफर करता था, रुकता था, बट कोई भी एब्सोल्युटली कोई इक्विपमेंट नहीं था। आई थिंक हमारा मेरे वीडियोस चलना शुरू हुए 2018 फेब में, एंड जुलाई में मैंने पहला इन्वेस्टमेंट किया था, iPhone 8 लिया था। तो और माइक 1,200 रुपए का था, आज भी वही माइक यूज होता है, बोया का एक माइक है, और 1200-1300 रुपए का ही Amazon का ट्राइपॉड, तो वो दोनों यूज होता है। अब एक लाइट भी है, वो पूरी लाइट आई थिंक अम्ब्रेला और बल्ब मिला के 800 रुपए के बल्ब है उसमें, और 2,000 रुपए का अम्ब्रेला है। 5,000 रुपए का पूरा इक्विपमेंट है और फोन, और कुछ भी नहीं है। तो जो ये लोग हमसे पूछते रहते हैं, आप लोग सुन लो, 5,000 रुपए में पूरा यूट्यूब का एक डिसेंट सा सेटअप तैयार हो सकता है। उससे 40 लाख सब्सक्राइबर तक तो कम से कम पहुंच सकते हो। उसके आगे नहीं पता, बट वहां तक तो आ जाओगे एज ऑफ नाउ। अच्छा, हाउ डिफिकल्ट इज इट टू प्ले दीज मल्टीपल रोल्स एज वेल? बिकॉज लोगों को लगता है यूट्यूब बिजनेस और कंटेंट क्रिएशन बिजनेस इन जनरल इट्स जस्ट अबाउट सिटिंग इन फ्रंट ऑफ द कैमरा, आपने रिकॉर्ड कर दिया और बात करते हो। बट आई एम श्योर इसके अलावा बहुत सारे डिफरेंट रोल्स होते हैं, बिकॉज यू ऑल्सो हैव टू एंश्योर आप उसका ऑप्टिमाइजेशन खुद ही कर रहे हो अपने वीडियो का कि वो लोगों तक पहुंचे। फिर आपको बेशरम भी बनना पड़ता है, आपको मार्केटिंग करनी पड़ती है, आपको हल्ला मचाना पड़ता है अपने वीडियोस का, वर्ड ऑफ माउथ स्प्रेड करना पड़ता है। तो कितना डिफिकल्ट है ये सारे रोल्स प्ले करना एट द सेम टाइम? मानस, टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैंने बताया ना, मैंने खुद को कभी कंटेंट क्रिएटर जैसे देखा नहीं है, तो आउट ऑफ माय टोटल टाइम मैं शायद हफ्ते में 1-1.5 घंटा देता होऊंगा कंटेंट के साइड, कोई ट्वीट, कोई इंस्टा पोस्ट, यूट्यूब। सो माय वीडियो रिकॉर्डिंग जर्नी इज 10 मिनट में पॉइंटर्स बनाए, 20 मिनट में रिकॉर्ड किया, डन। तो अगर आप ना मेरे वीडियोस जाके देखोगे तो मोर देन 50% वीडियोस में डिस्क्रिप्शन ऑप्टिमाइज नहीं होता, टैग्स नहीं होते। मैंने ना चैनल सेटिंग्स में 20-25 टैग डाल दिए जो मेरे हर वीडियो को ऑलमोस्ट सूट कर जाते हैं। वो एक बार कर दिया, अब अगली बार वीडियो पब्लिश होता है ना, तो वो 20 टैग तो होते ही हैं। मेरे को बस ये देखना होता है इस वीडियो के हिसाब से ना ये 2-4 टैग हटा दो और 2 नए डालो। तो ऑप्टिमाइजेशन इज 2 मिनट। डिस्क्रिप्शन 2 लाइन का होता है, कभी नहीं भी होता है। टाइटल में मैं दे देता हूँ 5 मिनट में टाइटल सोच लेता हूँ, 5 मिनट थंबनेल सोच लेता हूँ। थंबनेल अब ग्राफिक डिजाइनर बना देते हैं। लेकिन टू मी इट्स क्योंकि मैं ब्लॉगिंग कर रहा हूँ ना मेरे दिमाग में, तो माय थिंग इज, माय कंटेंट क्रिएशन फिलॉसफी इज कि लोग ना मेरे से पी रेशो क्या होता है सुनने नहीं आए। वो तो कई बुक्स में, ब्लॉग्स में, वीडियोस में, हजारों जगहों से मिल जाएगा। लोग मेरे से 2 चीजें सुनने आए हैं। पहला, मैं शायद 10% टाइम में उनको बता दूं कि क्या होता है पी रेशो, जस्ट टू स्टार्ट ऑफ। लेकिन मेन थिंग इज, वो मेरे से सुनने आए हैं मेरा ओपिनियन, व्हेन टू यूज इट, व्हेन नॉट टू यूज इट, क्या मेरे हिसाब से उसके कोई बेटर ऑल्टरनेटिव्स हैं। सो लोग मेरा कंटेंट कंज्यूम कर रहे हैं मेरे ओपिनियन की। तो अब अगर मेरा ओपिनियन मुझे देना है तो मुझे ओपिनियन रिसर्च नहीं करना, मुझे सिर्फ फैक्ट्स रिसर्च करने हैं, इस पे ज्यादा टाइम नहीं लगता। तो आई थिंक मैं इसको बहुत साइड में करता हूँ। आई थिंक दैट आल्सो हेल्प्स की देन आई एम नॉट वेरी कॉन्शियस अबाउट इट। फिर मैं बहुत ज्यादा कॉम्पिटिटिव नहीं होता, आई एम वेरी कॉम्पिटिटिव पर्सन। लेकिन क्योंकि मेरे लिए कंटेंट क्रिएशन इज अ हॉबी, तो मेरे को फर्क नहीं पड़ता कौन कितना ग्रो कर रहा है, क्या कर रहा है, और मेरा फ्रेम ऑफ माइंड पॉजिटिव होता है। तो आई थिंक शायद इसलिए भी आई मेंटेन इट दैट वे कि अगर फ्रेम ऑफ माइंड अच्छा रहे ना, अदरवाइज ना, जैसे मैंने कभी कभी ना, मैंने एक वो दूसरों के लिए वीडियो बनाए कभी कभी पूरी वो टेड टॉक्स, जोश टॉक्स, इस तरह के प्लेटफॉर्म पे, तो वहां उनके डूज एंड डोंट्स, बेस्ट प्रैक्टिसेस होते हैं। एंड आई रियलाइज्ड यार ये बनाना 10 टाइम मोर डिफिकल्ट, मेरे से नहीं हो रहा है, मेरे को खाली छोड़ दो एंड आई कैन स्पीक व्हाटएवर आई फील लाइक। तो आई थिंक बिकॉज मेरा प्रोसेस इतना रिलैक्स्ड है ना, एक बेनिफिट उसका ये होता है कि आई एम नॉट कॉन्शियस व्हेन आई एम स्पीकिंग, क्योंकि मेरे कोई डूज एंड डोंट्स नहीं है, आई कैन जस्ट लेट इट आउट। एंड आई थिंक दैट उसके कारण आई कनेक्ट विद पीपल। तो मैं इसको ऐसे ही रखना चाहता हूँ। But then that brings me to the next question, which is कि जिस टॉपिक पे आप वीडियोस बनाते हो, जिस जॉनरा के आप वीडियोस बनाते हो, which is finance, it involves money. I mean, it involves real money, right? You're, at times you're also advising people and people get influenced and basis that they put their money. रिस्पॉन्सिबिलिटी कितनी फील होती है अगर कहीं किसी को यार ऐसा एडवाइस दे दिया, कभी कोई रात को फोन करके बोल देता है कि भाई ये क्या, हेलो तुम्हारी वजह से पैसे डाल दिए गए? नहीं सर, ये मैं हमेशा बोलता हूँ कि इसमें कंटेंट में कि अगर ना, इफ आई वुड हैव बीन अ टेक क्रिएटर, गैजेट रिव्यू कर रहा है, या मैं कोई क्लॉथ रिव्यू कर रहा होता,
तो ना रिस्पॉन्सिबिलिटी वुड हैव बीन मच लेस, कि मेरे कहने पे किसी ने कोई फोन ले भी लिया तो एक तो 50,000 का फोन लिया तो वो कोई बहुत बुरा तो होने वाला है नहीं, और चलो यार बुरा ऐसे मत हो भी बोलो। गया। हम रेकमेंड करते हैं, फिर लोग हमें आके गालियां देते हैं कि सर आपने बोला है फोन ले लिया, अब देखो सॉफ्टवेयर अपडेट नहीं आ रहा, लैग हो रहा है, कैमरा नहीं चल रहा। हाँ, बट सर उससे भी ना मैं बोलता हूँ, अगर कोई पेड रिव्यू भी कर रहा है, गलत रिव्यू भी कर रहा है, तो उस इंसान का जिसने वो फोन खरीदा उसका लॉस 50,000 का ही होता है। लेकिन एज अ एग्जैक्टली। फाइनेंशियल इन्फ्लुएंसर अगर मैं पैसे खा के किसी को गलत इंश्योरेंस दे दे रहा हूँ ना, और क्लेम नहीं मिलता, तो पूरी फैमिली का फ्यूचर बर्बाद कर रहा हूँ। तो the onus, the responsibility that we have is comparatively more consider, क्योंकि ये लाइफस्टाइल जॉनर नहीं है, यहाँ हमको लोग टाइम पास के लिए नहीं देख रहे हैं, वो अपने इंपॉर्टेंट लाइफ डिसीजंस लेने के लिए हमको देख रहे हैं। तो थोड़ा दूसरे जॉनर के मुकाबले मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा फील करता हूँ कि है। और हाँ सर, बहुत होता है ऐसा, मतलब आज मेरा एक वीडियो अभी भी लाइव है। एक ना सर मैंने एक वीडियो बनाया था जिसपे ना मैं एक कंसेप्ट समझा रहा था कि ह्यूमंस बाय नेचर, हम में से ज्यादातर लोग, खास करके यंग लोग, वी हैव अ टेंडेंसी टू गैम्बल। तो लॉटरी टिकट, कसिनो, थिंग्स लाइक दैट, एंड स्टॉक मार्केट इज अ लीगल प्लेस टू गैम्बल। तो यू शुडंट डू दैट। लेकिन अगर आपको लगता है आप में कंट्रोल नहीं है, टू चेक दैट अर्ज, आप अपने पूरे कैपिटल का 5% गैम्बलिंग मनी कर दो। और मैंने फिर उसमें कहा, जैसे मैंने ना तभी येस बैंक बहुत गिरा हुआ था, वो सारा स्कैम में मारा था, तो तभी मैंने ये बोल दिया था कि जैसे मैंने गैम्बल करने के लिए ना अपना 1% पैसा इसमें डाल दिया, अगर बढ़ता है, इफ समवन रेस्क्यूज इट ग्रेट, और इफ नॉट मेरा 1% इज गॉन। वो वीडियो ना खूब चला, एंड आई स्टार्टेड गेटिंग टन्स ऑफ फीडबैक कि आपने येस बैंक रिकमेंड किया था, उसके बाद वो बैंक और गिरा, मैंने शायद ना काफी ऊपर में रिकमेंड किया था, उसके बाद वो 50, 60, 80% और करेक्ट हो गया। तो लोग ये कहने लगे कि आपने बोला था येस बैंक, हमने तो इसमें पूरा पैसा डाल दिया, हमने तो लाख रुपए डाल दिया, 2 लाख रुपए डाल दिया। तो उसके बाद आई फेल्ट रियली गिल्टी कि अगर हजारों लोगों को मिसकम्युनिकेशन हुआ तो वो उनकी गलती नहीं है, फिर वो मेरी गलती है। आई एम एन एक्सपीरियंस्ड इनफ कंटेंट क्रिएटर कि ऐसा ना हो, मैं कोई पहला वीडियो नहीं बना रहा था। सो दैट्स माय रिस्पांसिबिलिटी। तो अभी भी ना वो वीडियो है, अपॉलॉजी वीडियो, जहां आई सेड पब्लिकली सॉरी अबाउट डूइंग दिस, अबाउट सेइंग कि आई बॉट येस बैंक, बिकॉज पीपल थिंक इफ आई बॉट इट्स अ गुड स्टॉक। तो वो बहुत बड़ा गिल्ट था सर। आई कुडंट स्लीप फॉर 2-3 डेज जब भी वो स्टॉक नीचे जा रहा था, एंड आई रियलाइज्ड कि यार ये बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई। सो या दैट्स माय बिगेस्ट रिग्रेट। तभी बहुत कुछ हुआ था, बहुत प्रेशर था, बहुत बहुत कुछ बोल रहे थे, लेकिन सरप्राइजिंगली सर जिस दिन मैंने वो वीडियो डाला ना, अपॉलॉजी वीडियो डाला, और मुझे था कि मैं ऐसे पब्लिक में आके बोल रहा हूँ कि मेरी गलती थी फॉर वॉट एवर रीजन, बट आई रिकमेंडेड अ रॉन्ग स्टॉक और इतना लॉस हुआ, आज तो पता नहीं क्या होने वाला है, आज तो आई एम फिनिश्ड। लेकिन उस दिन जितना प्यार मिला ना आज तक वो, इट वाज एब्सोल्युटली ऑपोजिट ऑफ व्हाट आई एक्सपेक्टेड। तो तब से आई गेट गॉट मोर कॉन्फिडेंट कि यार जो है ना ऑनेस्टली बोलो, गलती हुई ऑनेस्टली बोलो, जो हो रहा है ऑनेस्टली बोलो। And it also becomes tricky because you also have to at times maybe you are being very honest, but क्या होता है ना कि इंटरप्रिटेशन में भी थोड़ा सा लोगों के फर्क हो सकता है, टेक्निकल अंडरस्टैंडिंग को लेके फर्क हो सकता है अगर फाइनेंस की बात करें। सो बट देन अगेन वेयर डू यू ड्रॉ द लाइन इन टर्म्स ऑफ लेट्स से कि कंटेंट को फन भी रखना है, एंगेजिंग भी रखना है, और इंफॉर्मेटिव भी रखना है, एंड यू शुड नॉट कम आउट एज अ पर्सन हु इज कैजुअल और हु इज वेरी कैजुअली टॉकिंग अबाउट मनी। सो वो बैलेंस कैसे फाइंड करते हो? सर आई थिंक, मतलब लाइफ में किसी भी डोमेन में, दिस इज माय वन ऑफ माय कोर बिलीव्स कि आपको अपनी स्ट्रेंथ और लिमिटेशंस तो बहुत अच्छे से पता होनी चाहिए। तो मुझे ना जैसे मेरी लिमिटेशन पता है कि मैं बहुत ज्यादा ह्यूमर नहीं कर सकता, या मैं क्या नहीं कर सकता वर्सेस मैं क्या कर सकता हूँ। तो जैसे मुझे लगता है कि आई एम गुड एट इंटेंस कॉन्वर्सेशंस, आई एम गुड एट एक्सप्रेसिंग इमोशंस, एक्सप्रेसिंग सॉरी, सो आई थिंक आई एम रियली गुड एट एक्सप्रेसिंग मेंटल मॉडल्स, लॉजिकल थिंकिंग, स्टेप बाय स्टेप। तो आई स्टिक टू दैट। अगर अभी रील्स चल रहे हैं तो जैसे मैंने रील्स और शॉर्ट्स बनाना शुरू किया, लेकिन उसमें आई डोंट डांस, आई डोंट सिंग, बिकॉज आई नो आई कांट डू दैट। तो आई स्टिक टू व्हाट आई एम गुड एट। अगर उसने चलना होगा तो चलेगा, नहीं चल, बट व्हाट आई एम गुड एट, यू नो, I think absolutely breaking down any concept to its simplest possible form and explaining. I try to keep improving upon that, and I try to keep finding things that are complex and there is a scope to simplify them further. तो I stick to what I'm good at. मुझे आसपास क्या हो रहा है I don't follow, वरना बहुत इनसिक्योरिटी हो जाती है सर।
And I think this works for any any sort of genre of content, because not just finance. अगर हम टेक वीडियोस बनाते हैं या कोई और, तो you have to break it down in the simplest form ताकि लोगों को समझ में आए आसान से आसान शब्दों में. But इसमें कितना important हो जाता है to innovate and to adapt, because you talked about reels a new format again. या फिर YouTube शॉर्ट्स है जो 1 मिनट का वीडियो होता है, 60 सेकंड के वीडियो होते हैं. तो अडेप्ट करना, इनोवेट करना कितना जरूरी होता है एज अ कंटेंट क्रिएटर? Sir, this is important because what I've experienced is कि जो base knowledge है ना, वो base keeps changing. जैसे अगर मैं आज से 2 साल पहले बोलता कि stock market is a great place to earn, that was the base level जहां से बिगनर शुरू कर रहा है. आज everyone is there, वो base पे तो 8 साल का बच्चा, तो that base has changed. और ना प्रॉब्लम है कि सबसे ज्यादा व्यूज बेस लेवल पे है हमेशा, लेकिन वो बेस क्या है, you have to identify that. I don't know if I'm making sense, लेकिन मुझे पता है 3 साल पहले ना anyone who made a video on what is stock market got tons of videos. लेकिन आज वो बेस तो वो उसको पैदा होके मिल रहा है, उसको बच्चों से स्कूल में सबसे मिलता है. तो आज का बेस इज समथिंग डिफरेंट. आज का बेस इज, आज अगर मैं बेस की बात करूं तो ईवी में इन्वेस्ट करना चाहिए कि नहीं, क्रिप्टोज और एनएफटीज में इन्वेस्ट करना चाहिए कि, तो बेस वो हो गया. तो सबसे ज्यादा व्यूज तो बेस लेवल पे ही. व्हाट इज दैट वन क्वेश्चन इन योर डोमेन दैट एवरीवन इज आस्किंग, एंड उसके आंसर्स अभी बहुत कम मिले हुए हैं. लेकिन तो ना इंफॉर्मेशन आर्बिट्राज, उस समय का इंफॉर्मेशन आर्बिट्राज क्या है, वो ढूंढना बहुत जरूरी है. और अगर आप वो ढूंढोगे तो आपका स्टाइल भले ही बहुत ज्यादा चेंज ना हो, लेकिन कंटेंट में इनोवेशन होता रहेगा, बिकॉज दैट इंफॉर्मेशन आर्बिट्राज कीप्स चेंजिंग. And last question, I know I've taken a lot of your time, which is what is that one advice, एक advice जो आपको budding creators को देना हो, somebody who's just starting out, and now because also YouTube has also changed as a platform, or just the content creation the way it was maybe 10 years back, it's not the same anymore. Like everybody's creating content. So what is that one advice? एक चीज क्या बोलोगे? आई थिंक ये मेरा सिर्फ अंदाजा है, मैं श्योर नहीं हूं, लेकिन एक गलती मेरे हिसाब से जो है, जो मैंने सबको करते देखी है, इज दैट मान लो किसी का ना सुपर बाइक्स का चैनल है कि वो बाइक रिव्यू कर रहा है, इंपोर्टेड बाइक्स, रेसिंग कर रहा है. अभी एवरीवन वांट्स ग्रोथ, और शुरू में आपको ग्रोथ कहां से आएगी? फ्रेंड्स एंड फैमिली से. तो ना जैसे ही किसी ने यूट्यूब चैनल बनाया तो उसको फ्रेंड्स ग्रुप में भी शेयर कर दिया जहां दादा नानी है, दादा नानी ने भी अपने मॉर्निंग वॉक ग्रुप में शेयर कर दिया, और उन्होंने आउट ऑफ लव आपका चैनल सब्सक्राइब भी कर दिया, लाइक भी कर दिया, और थोड़ा बहुत पहला दूसरा वीडियो देख भी लिया. अभी आपके चैनल में फ्रेंड्स एंड फैमिली से हो गए 200 लोग जिन्होंने सब्सक्राइब कर दिया, 200 लाइक भी आ गए. लेकिन जब रिटेंशन की बात आ रही है ना, अब दादा दादी को सुपर बाइक्स में इंटरेस्ट नहीं है, वो लाइक करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं, बंद कर देते हैं, सोचा कि हमने अपना फर्ज पूरा कर दिया. दिस इज अगेन माय असम्पशन कि एल्गो के लिए दिस इज अ बैड साइन कि यार 200 सब्सक्राइबर है, 200 व्यू भी है, लेकिन 10 ये तो बड़ा गड़बड़ है. इससे अच्छा है कि 10 ही व्यूज आए लेकिन ना रिटेंशन बढ़ा हुआ है. तो कभी भी अपने चैनल में अगर हम सोचें कि हम फ्रेंड्स फैमिली से ट्रैक्शन ले आए और वो हमारे चैनल को शेयर कर करके बढ़ा दें, आई थिंक पहले दिन ही हम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को ये सिग्नल दे रहे हैं कि ये ना स्पॉन्सर्ड व्यू है, ये व्यूज मैं खरीद के लाया. क्योंकि वो बॉट वाले व्यू ऐसे ही होते हैं, लाइक आ गया, गुड कंटेंट का कमेंट आ गया, वीडियो देखा ही नहीं. तो बॉट और फैमिली व्यूज ना सिमिलर होते हैं. बहुत बिगिनर फैमिली से व्यू लाना चाहते हैं, मेरे हिसाब से वो बहुत गड़बड़ है. और ना आई थिंक एम किसी भी क्रिएटर का ये नहीं होना चाहिए कि मैं 100 लोगों तक पहुंचूं. एम ये होना चाहिए कि मैं 10 लोगों तक पहुंचूं जो उस नीश में इंटरेस्टेड है, फिर मेरा कंटेंट इतना अच्छा हो कि वो 10 लोग उसको शेयर करते चले अपनी कम्युनिटीज में. 10 ही लोग बहुत है सर किसी वीडियो को वायरल करने के लिए. वेरी वेरी इंटरेस्टिंग पॉइंट ऑफ व्यू, स्पेशली जो, बिकॉज मैंने भी देखा है बहुत सारे लोग ना सब्सक्राइबर काउंट के पीछे भागते हैं इंस्टेड ऑफ द अदर फैक्टर्स कि यार 100 बंदे नहीं आ रहे चैनल पे, 10 आए, पर वो 10 बैठ के देखें तो वीडियो लास्ट तक. सो आई थिंक दैट इज अ वेरी इंटरेस्टिंग पर्सपेक्टिव. Thank you so much, Pranjal. I think you were very kind with your time and with your answers. And it's a very inspirational story for all the creators out there. I hope यार आप ऐसे content बनाते रहो. मैं भी follow करता हूँ आपका content थोड़ा बहुत. तो good to have you on the show.